So children, here one flow chart of mode of reproduction I have displayed here. Here you can see two types of modes you can see. First is asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, again four modes are there. The one is vegetative propagation, then budding, fragmentation and spore formation. So all these four are asexual reproduction mode. In sexual reproduction, again four modes are there. The one is pollination, fertilization, fruits and seeds formation, and the last one is seed dispersal. So one by one let us take a look. So here in asexual reproduction method, here are some pictures I have shown here. That is, the first one is for budding, fragmentation, vegetative propagation and spore formation. All four are there. Let us take a look for all in detail. So in this first one, asexual reproduction, vegetative propagation. But why it is called vegetative propagation? Because the reproduction is done through vegetative parts. So here it is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. So all of the parts we know that these are vegetative parts. So that this kind of reproduction is known as vegetative propagation. Fine. Now one activity is given, that is activity 12.1. Children, आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा या आपको पता होगा कि रोज़ प्लांट जो है उस प्लांट में स्टेम कटिंग करने से और उसे फिर सॉइल में अच्छे से उसे ग्रो करने से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है. फाइन. सो दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और द फर्स्ट वन जो है हमें रोज़ या चंपा, ऐसे कुछ हेबिस्कस है, ऐसे कुछ प्लांट्स है जिसमें स्टेम कटिंग से दूसरा न्यू प्लांट्स जो है हम ग्रो कर सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ नोड जहाँ पे है आप लोगों को पता है कि जो स्टेम है उसका जॉइंट जो है इट इज़ कॉल्ड नोड. तो वहाँ से नोड से उसे कट करो, थोड़ा स्लेंटेड, उसे फिर सॉइल में अच्छे से सो करो, उसे ग्रो करो, देन न्यू प्लांट विल ग्रो. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ propagation. That is, you must have seen flower buds developing into flowers. Apart from flower buds, these are buds in the axil, that means point of attachment of leaf at the node of leaves which develop into shoot. These buds are called vegetative buds. तो इसी में से न्यू लीव्स जो है वो ग्रो करेंगे और धीरे धीरे प्लांट जो है वो बड़ा होगा. A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative buds can also give rise to new plants. So अगर ऐसे birds जो है bud उसे हम अच्छे से soil में grow करें, then new plant can grow. The new one more activity is given. Children, आप लोगों ने पोटैटो में ऐसे ऊपर पोर्स जैसा देखा होगा. ऐसा पार्ट एक्चुअली ये जो है ना पोर्स है, मतलब जब पोटैटोज कुछ दिन के लिए अगर घर में पड़े रहें तो उसमें ऐसे दूसरा एक नया प्लांट छोटा सा स्प्राउट जैसा हमें दिखेगा. तो एक्चुअली इसमें से ही न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है. फाइन. सो हियर वन मोर एक्टिविटी इज गिवन. टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन ईट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पोटैटो को अच्छे से अगर ध्यान से देखें तो इसके ऊपर हमें छोटे छोटे छेद जो है वो दिखाई देंगे. और इसी में से अगर कुछ दिन ऐसे ही पड़े रहें देन उसमें से न्यू प्लांट जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज. इसे कहेंगे छोटे पोर्स जैसा जो है स्ट्रक्चर उस पे ऊपर पोटैटो के ऊपर, उसे हम कहेंगे आइज. Cut the potato into small portion, each with an eye, and bury them into
द सॉइल, उसके बाद सॉइल में हमें दबा देना है, उसमें डिग करना, डाल देना है। वाटर द pieces regularly for a few days and observe their progress. What do you find? So अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें से हमें ऐसे पोज दिखाई देंगे और उसमें एक न्यू प्लांट जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। सेम वे जिंजर के लिए भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। जिंजर आपने देखा होगा कि जिंजर के आसपास ऐसे रूट्स जो है वो बाहर की ओर दिखाई देंगे। और सेम वे टर्मरिक और जिंजर को भी हम ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन मोर इज ब्रायोफिलम और स्प्राउट ऑफ लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। इट इज if a leaf of this plant fall on a moist soil, each bird can give rise to a new plant. That means ब्रायोफिलम जो ऐसा एक प्लांट है जिसमें लीफ जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है, दैट मीन्स लीफ में से दूसरा प्लांट है ग्रो करेगा। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, दैट इज स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। स्वीट पोटैटो और डहलिया ऐसा है कि जिसमें रूट्स जो है उससे न्यू प्लांट है वो ग्रो करेगा। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। दैट मीन्स कैक्टी जो है उसे ग्रो करने के लिए सिर्फ लीफ की ज़रूरत पड़ेगी। लीफ जो है, लीफ अगर उस टूट जाए और ज़मीन पे गिर जाए तो उसमें से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। हियर वन फिगर इज गिवन, दैट इज ब्रायोफिलम। उसमें लीव्स में से दूसरे लीव में से दूसरा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। गॉट इट चिल्ड्रन? इज इट क्लियर? ओके, लेट अस कंटिन्यू। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। अब इसकी हमें यूज़फुलनेस क्या है? अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स से कोई भी प्लांट अगर ग्रो करना चाहें तो plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। मतलब सीड जो है ना, सीड को अगर हम सॉइल में बरी करें, उसमें उगाएं तो सीड को पहले तो जर्मिनेट होना पड़ेगा, उसमें से धीरे धीरे स्प्राउट जैसा एक छोटा सा रूट निकलेगा, देन शूट सिस्टम, फिर वो प्लांट जो है वो बड़ा होगा। दैट मीन्स इट विल टेक मोर टाइम टू ग्रो। बट अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट को ही हमने ग्रो किया है तो उसमें जो प्लांट है वो जल्दी बनेगा और फ्लावरिंग स्टेज में जल्दी आएगा। फाइन चिल्ड्रन? Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characteristics of both parents and both the parents। लेकिन यहाँ पे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। क्यों? बिकॉज उसमें एक ही प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होते हैं, तो जो पेरेंट प्लांट है सेम वैसा ही दूसरा प्लांट बनेगा, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक ही प्लांट से हम दूसरा प्लांट उगा सकते हैं। इसमें दो प्लांट्स की या दो गैमेट्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो एग्जैक्टली सेम कॉपी जो है वो उसकी बनेगी। एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट है दैट इज़ वाई जो पेरेंट प्लांट है एग्जैक्टली वैसा ही दूसरा न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो गैमेट्स चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट्स भी चाहिए। सो इट विल लिटिल बिट डिफरेंट, और या पेरेंट के दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक इसमें होगी। फाइन चिल्ड्रन? ओके, लेट अस कंटिन्यू बडिंग। Okay, so in budding we are going to learn about yeast. You know that children, yeast is a single celled organism, okay, and that can be seen under microscope only. So but how do they grow? और yeast जो है उसका कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? Yes, you are right children, स्पेशली जब बेकरी आइटम जो कोई बनती है, जैसे
केक है, पेस्ट्री है या ऐसी कोई आइटम जिसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, दैट टाइम दिस ड्राई ईस्ट जो है उसका यूज़ होगा। ड्राई ईस्ट ऐसा एक पाउडर है, इट इज़ अवेलेबल इन बेकरी शॉप्स, और उसमें से हम केक के लिए बैटर बना सकते हैं या ब्रेड है उसके लिए बैटर बना सकते हैं। सो हमें इसमें क्या करना है, इसका ग्रोथ अगर जो हमें देखना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लिटिल बिट lukewarm water in a glass, then add spoonful of sugar in it, उसे मिला दो, मिक्स कर दो, और उसके बाद इसमें यीस्ट का थोड़ा पाउडर जो है वो डालो, फिर उसे थोड़ी देर के लिए हाफ एन आवर के लिए साइड में रख दो। अगर उसके बाद अगर आप उसे खोल के देखोगे तो वो पूरा जो बैटर है वो फूला हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें से अगर थोड़ा सा पोर्शन अगर हम लेके माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज़ यीस्ट सेल ऐसा है। फिर इसमें डेवलपिंग बड, सेल के ऊपर की ओर ऐसा एक बडिंग का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, दैट इज़ बडिंग। देन थोड़ी देर के बाद ये बड जो है वो पूरा यहाँ से अलग हो जाएगा और उसके बाद एक बड की चेन भी बनेगी। सो दिस वे दे प्रोड्यूस, एक सेल से बहुत सारे सेल्स जो है वो बन सकते हैं, दैट मीन्स दे रीप्रोड्यूस देम सेल्स। तो दिस मेथड इज कॉल्ड बडिंग। बट व्हाट इज बड? Okay, so the small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. हर एक bud जो है वो अलग सेल के जैसे ग्रो करेगा। The new yeast cell grows, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल। मतलब बर्ड में से जो एज ए बर्ड जो पेरेंट सेल में से यहाँ से अलग हुआ, सो इट विल ऑल्सो गेट मैच्योर्ड एंड अगेन इट विल ग्रो अनदर सेल्स। नाउ समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम the bud forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. मतलब इस yeast को ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं, अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर में वो अच्छे से ग्रो करेगा। जब तक yeast के लिए फूड अवेलेबल है तब तक वो ग्रो कर सकेगा। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज fragmentation. Okay children, the next one is fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. ये आपने खास करके मानसून सीजन के बाद बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे पानी भरा पड़ा है उसके ऊपर ग्रीन कलर का पूरे पेचिस या ग्रीन कलर का लेयर आप देख सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड अलगाई। अलगाई के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा पढ़ चुके हैं। ओके चिल्ड्रन, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अलगाई ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो अलगाई है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मानो ये एक पोर्शन है, उसका 2 पार्ट में वो डिवाइड होगी, एक पार्ट अलग से बिहेव करेगा और दूसरा जो है अलग से सर्वाइव करेगा। अगेन ये पार्ट मैच्योर होके फिर से इसके 2 पार्ट्स बनेंगे और इसमें से दोनों में से 2 पार्ट्स बनेंगे, ऐसे ही ग्रो करेंगे। सो दिस वे हर एक पोर्शन जो है वो डिवाइड होगा या कट होगा और उसमें से न्यू पोर्शन बनेगा। अगेन इस न्यू पोर्शन में से दूसरे पोर्शन बनेंगे। सो एक में से एक अलगाई के पोर्शन में से बहुत सारे अलगाई जो है वो प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स दे आर द पीसीज। एंड अलगा ब्रेक्स अप इनटू 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. तो बहुत बार ऐसा होगा कि छोटा वाटर बॉडी है, तालाब है, तो उसमें पूरी ग्रीन कलर की जैसे चादर आप देख सकते हो वो
पूरी फैल जाती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अलगाई जो है वो अपने आप को जल्दी ग्रो करते हैं और पूरे एरिया में फैल जाते हैं. फाइन चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. So in spore formation, before we proceed, in chapter 1 you have learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये फंगाई के बारे में पढ़ा है कि इट इज़ सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ फूड इज़ देयर. सो इसमें क्या है कि जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी है या थोड़ी वार्मनेस है, तो इस ऐसे एटमॉस्फेयर में फंगाई जो है वो ग्रो करती है. और ख़ास करके लेदर है, प्लास्टिक है या वुड है, तो उसके ऊपर वो ग्रो करेगी. और जब कोई फूड आइटम जैसे कि ब्रेड जो है वो पुरानी हो जाती है, 1-2 दिन पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर हम वाइट कलर का ऐसा लेयर देख सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड fungi. Okay, so observe the spores in the cotton like mesh on the bread. When these spores are released by keep floating in the air, as they are very light, they can cover long distance. So here one figure is given how reproduction through spore formation in fungus. Okay, spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. That means उसका जो outer layer है वो थोड़ा hard होता है. That means it protects the spore for getting spoiled by अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है या विंड है, तो उससे वो खराब होगा नहीं. सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. प्लांट्स सच एज मोस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. तो दूसरे जो प्लांट्स है, एक यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है फर्न, तो इसमें भी प्लांट्स जो है वो लीव्स के स्पोर्स थ्रू ग्रो करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज द डिटेल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जस्ट टेक ए लुक क्विकली. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दैट मीन्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स से जो प्लांट ग्रो करते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. देन बडिंग, जैसे कि यीस्ट या ऐसे फर्मेंटेशन के लिए जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड बडिंग. देन फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक पार्ट का बहुत सारा डिवीजन होगा और उसमें से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर्स जो है वो एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फेवरेबल कंडीशन मिलने पर वो किसी भी चीज़ के साथ अटैच होते हैं एंड देन दे grow. Okay children, now that's it for asexual reproduction. In next video we are going to learn about sexual reproduction. Okay, thank you, take care of yourself, bye bye.